Hello students, how are you all? I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 5, that is Let's Learn Scratch. So here in this lesson we are going to study about the Scratch, how to start the Scratch, then what are the components of Scratch window, then we are going to study about the types of blocks, then moving a sprite, and what is how to draw with pen, how to draw a straight line, how to draw a circle, how to create a new project, then how to open an existing project, and how to save a project, and how to exit Scratch. So here, let's begin. Scratch is an educational programming language. What is this? It is an educational programming language to create interactive stories, arts, animation, games. ये किस लिए यूज होती है? क्रिएट करने के लिए इंटरेक्टिव स्टोरीज को, आर्ट्स को, एनिमेशन शो एंड गेम्स को क्या यूज करके? ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग को यूज करके. अब नाउ हाउ टू स्टार्ट विद स्क्रैच. So first we have to open Scratch project, then click on Start button. A Start menu opens. A Start menu will open. So then click करना है आपको Scratch desktop पे. A Scratch 3.0 offline editor window will open. So first, what are the components of Scratch window? Here are some components. The very first is menu bar. This is the menu bar. This is your full screen component. This is your tab. This is your tabs. This is your blocks menu. This is your blocks menu. This is your block palette. This is your add extension. This is your script area. This is your stage where your working will appear. This is your sprite list. This is your choose a backdrop, and this is your choose a backdrop, and this is your choose a sprite. From here you can choose your sprite. Here, now what is menu bar? Menu bar contains menus. There are menus like files and edit. It also displays the name of the project. ये क्या करता है? Display करता है आपके project का name आपके middle में Scratch project पे. The tutorials button display various tutorials. Tutorials button क्या करता है? बहुत सारे display करता है बहुत सारे tutorials को आप Scratch project using which you can learn and practice coding. जिससे आप use कर सकते हो learning में and practice करने में coding को. Now what is tabs? There are 3 tabs. 3 tabs are codes, costume and sounds. So code tab is used to create a script. ये किस लिए यूज होता है? स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए ड्रैग करके एंड ड्रॉप करके अपने ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट एरिया में. कॉस्ट्यूम टैब इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट. कॉस्ट्यूम टैब किस लिए यूज होता है? अपीयरेंस चेंज करने के लिए स्प्राइट का. साउंड टैब इज यूज टू एड साउंड इफेक्ट. साउंड टैब किस लिए यूज होता है? साउंड इफेक्ट एड करने के लिए आपकी एनिमेशन पे. To select a shape, you just need to click over a shape. आपको select करनी है shape तो just आपको over किसी shape पे click कर देना है. Now blocks menu, it displays various types of blocks. ये बहुत सारे different types के blocks को display करता है. जैसे आपका motion हो गया, looks हो गए, sounds हो गए, and control etc. Next is blocks palette. When you click on block, जब आप block पर click करते हो blocks menu में, वो display करता है list आपकी blocks in blocks palette. These blocks are used to create a script. ये blocks इसलिए यूज होते हैं script create करने के लिए यूज होते हैं. Now script area. Script area is an area where a script for a sprite is created. जहाँ पे script आपके sprite की create होती है. Next is sprite. Sprite is a graphic character. ये graphic character है on which script is created. जहाँ पे script create होती है. Now sprite list ये display करता है list of sprites जो create होती है आपकी stage पे. Now choose a sprite. How can you choose a sprite? It is used to add a new sprite on stage. ये किस लिए यूज होता है? न्यू sprite को stage पे add करने के लिए. Choose a backdrop. It is used to fill the default white background with a. वो किस लिए यूज होता है? fill करने के लिए white background. Choose a backdrop. It is used to fill the default white background with a colored backdrop. So here are the types of blocks. Here are some types of blocks. Various types of blocks provided by Scratch 3.0 are motion block. Motion block is used to move a sprite. किस लिए यूज होता है? sprite को move करने के लिए यूज होता है. It is a blue color coded block. ये क्या? blue color का coded block है जिसमें क्या होता है? 18 blocks होते हैं. Now looks block. Looks block is used to change the appearance. ये किस लिए यूज होता है? appearance change करने के लिए sprite की. ये क्या होता है? पर्पल कलर का होता है. पर्पल कलर कोडेड होता है. Block having 20 blocks in it. इसमें 20 blocks होते हैं. Now sound blocks. Sound block is used to record and add sound. ये किस लिए होता है? record करने के लिए और add करने के लिए sound. It is a pink color coded block. ये किसका कैसा होता है? pink color coded block होता है जिसमें 9 blocks होते हैं. Next is events block.
इवेंट्स ब्लॉक इज यूज्ड टू ट्रिगर स्क्रिप्ट टू रन. ये किस लिए यूज होता है? ट्रिगर करने के लिए, स्क्रिप्ट को रन करने के लिए. इट इज अ येलो कलर कोडेड ब्लॉक. ये येलो कलर का कोडेड ब्लॉक होता है जिसमें 8 ब्लॉक्स होते हैं. नाउ कंट्रोल ब्लॉक. हाउ टू कंट्रोल ब्लॉक? कंट्रोल ब्लॉक इज यूज टू एड कंडीशनल एंड लूपिंग ब्लॉक्स. किस लिए यूज होता है? कंडीशनल और लूपिंग ब्लॉक्स को यूज करने के लिए, ऐड करने के लिए इन अ स्क्रिप्ट. इट इज दैट ऑरेंज कलर कोडेड ब्लॉक. ये ऑरेंज कलर का कोडेड ब्लॉक होता है और इसमें 11 ब्लॉक्स होते हैं. नाउ सेंसिंग ब्लॉक. सेंसिंग ब्लॉक इज यूज टू सेंस थिंग. ये सेंस थिंग करने के लिए यूज होता है. ये लाइट ब्लू कलर में होता है कोडेड. 18 ब्लॉक्स होते हैं इसमें. ऑपरेटर्स ब्लॉक. ऑपरेटर्स ब्लॉक इज यूज टू परफॉर्म बूलियन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन. किस लिए यूज होता है? बूलियन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है. ये ग्रीन कलर कोडेड होता है. इसमें 18 ब्लॉक्स होते हैं. दिस इज द ऑपरेटर ब्लॉक. दीज आर योर ब्लॉक्स. नाउ वेरिएबल ब्लॉक. वेरिएबल ब्लॉक इज यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल्स. ये वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है. एंड लिस्ट. इट इज डार्क ऑरेंज कलर. ये क्या होता है? डार्क ऑरेंज कलर का कोडेड ब्लॉक होता है जिसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं. नाउ माई ब्लॉक्स. माई ब्लॉक इज यूज्ड टू क्रिएट योर ओन ब्लॉक्स. ये किस लिए यूज होता है? अपना खुद का ब्लॉक क्रिएट करने के लिए. नाउ मूविंग अ स्क्रिप्ट. अब स्क्रिप्ट को मूव कैसे करते हैं? टू मूव द मूविंग आ स्प्राइट. अब स्प्राइट को मूव कैसे करते हैं? टू मूव द स्प्राइट ऑन स्टेज मोशन ब्लॉक इज यूज. इसके लिए क्या यूज करते हैं? मोशन ब्लॉक को यूज करते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक इन ब्लॉक्स मेन्यू, जब आप क्लिक करते हैं मोशन ब्लॉक को ब्लॉक्स मेन्यू पे, वो डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ रिलेटेड ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स पैलेट. सो स्टेप बाय स्टेप मेथड टू मूव अ स्प्राइट्स ऑन स्टेज. क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है. मूव 10 स्टेप्स टू स्क्रिप्ट एरिया. देन you click on this block. जब आप इस ब्लॉक पे क्लिक कर दोगे then the sprite will move in forward direction. sprite आपके forward direction में move करना start कर देगी. then click करना है, drag करना है, turn 15 degrees तो script आप to script and place it under move 10 step. और इसको आपको इसके अंदर move place करना है, move 10 steps के अंदर place कर देना है. ब्लॉक के ये क्या करेगा? मूव करेगा, टर्न करेगा आपकी स्प्राइट को. क्लिक द लेफ्ट माउस बटन मल्टीपल टाइम्स. आपको लेफ्ट माउस बटन को मल्टीपल टाइम्स क्लिक करना है देखने के लिए मूवमेंट अपनी स्प्राइट के स्टेज पे. इफ यू वांट टू मूव द स्प्राइट मल्टीपल स्टेप्स, अगर आपको अपनी स्प्राइट को मल्टीपल स्टेप्स मूव करना है विद सिंगल क्लिक, यू कैन यूज ब्लॉक ऑफ कंट्रोल ब्लॉक. आप ब्लॉक को यूज कर सकते हो अपने कंट्रोल ब्लॉक का. सो क्लिक करना है आपको किसी ब्लॉक पे, वो रन कर देगा आपके प्रोजेक्ट को. नाउ ड्रॉइंग विद पेन. अब पेन से ड्रॉइंग कैसे करते हैं? पेन ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लॉक मेन्यू बाय डिफॉल्ट. जो पेन ब्लॉक होता है प्रेजेंट नहीं होता ब्लॉक मेन्यू में बाय डिफॉल्ट. टू एड इट इन ब्लॉक मेन्यू फॉलो द गिवन स्टेप. आपको क्लिक करना है, ऐड करना है एक्सटेंशन बटन, देन चूज करना एक्सटेंशन, विंडो ओपन हो जाएगी. क्लिक करना आपको पेन ऑप्शन पे. अब पेन ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉक्स मेन्यू. जो एक पेन ब्लॉक होता है वो एड हो जाएगा आपके ब्लॉक्स मेन्यू में. When you click on pen block, जब आप क्लिक करते हो पेन ब्लॉक पे, वो डिस्प्ले करता है रिलेटेड ब्लॉक्स आपके ब्लॉक्स पैलेट पे. नाउ ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन. हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? To draw a straight line as sprite moves on stage, you can follow the given steps. आप कुछ given steps को follow कर सकते हो. Open Scratch project. आपको Scratch project को open करना है. Then click करना है control block पे, select करना है block and drag करना है script area पे. Then click करना है motion block को पे and select करना है move 10 steps block पे and place करना है उसे inside repeat block. उसके नीचे place कर देना repeat block के script area पे. Then click करना है pen block पे and drag करना है block को pen down, change pen size by 1 and change pen color to yellow. Under move block inside repeat block, move block के अंदर repeat block में then change करनी है आपको value of change pen size by 1 block from 1 to 5, 1 से 5 तक change कर देनी है. then click करना है आपको किसी block पे run करने के लिए script को. येलो लाइन ऑफ थिकनेस 5 पॉइंट विल बी ड्रॉ. जो येलो लाइन है थिकनेस कितनी होगी इसकी? 5 पॉइंट की ड्रॉ हो जाएगी. एज स्प्राइट जैसे जैसे आपकी स्प्राइट मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी. नाउ ड्रॉइंग अ सर्कल. सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? द स्क्रिप्ट टू ड्रॉ सर्कल इज, फर्स्ट आपको क्या करना है? रिपीट करना है 30, मूव 20 स्टेप, देन ब्लॉक चूज करना है वो टर्न 20 डिग्रीज, देन पेन डाउन, सेट करना है पेन साइज 5, देन सेट करना है पेन कलर पर्पल. सो आपका सर्कल फ्रेम हो जाएगा. सो पेन ब्लॉक्स इज यूज टू क्लियर द ड्रॉइंग. इरेज ऑल किस लिए यूज होता है? आपकी ड्राइंग को क्लियर करने के लिए. इन द अबव एग्जांपल द वैल्यू ऑफ रिपीट ब्लॉक इज चेंज टू 30. यहाँ पे जो आपकी रिपीट ब्लॉक है इसमें क्या हो गया? आपकी वैल्यू चेंज हो गई है 30 पे. मूव ब्लॉक टू 10 एंड टर्न ब्लॉक 20. मूव करा ब्लॉक को 10 एंड टर्न करा इस पे 20 को पे. नाउ
क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लिक करना है आपको फाइल मेन्यू पे, फाइल मेन्यू लिस्ट ओपन हो जाएगी। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद लिस्ट ओपन जाएगी, वहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक कर देना, न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ना। अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करते हैं? क्लिक करना है आपको फाइल मेन्यू पे, एक मेन्यू लिस्ट ओपन हो जाएगी। देन क्लिक करना है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑप्शन पे, एक मेन्यू आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने। देन आपको सेलेक्ट करना, हमने टाइप करना नेम अपने प्रोजेक्ट का। इफ यू वांट टू ओपन इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, देन क्लिक करना है आपको ओपन बटन पे। हाउ टू सेव आप प्रोजेक्ट, कैसे सेव करते हैं? क्लिक करना है आपको फाइल मेन्यू पे, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। देन सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देन टाइप करना है आपको नेम, अपना फाइल नेम अपने यहाँ पे टाइप कर देना। देन सेव बटन पे क्लिक कर देना, योर फाइल विल बी सेव। अब एग्जिट कैसे करते हैं स्केच को? टू एग्जिट फ्रॉम स्केच क्लिक करना है आपको क्लोज बटन पे, जो क्लोज बटन होता है उस पर क्लिक कर देना है। ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार वो प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करके आप एग्जिट कर जाओगे, अगर आपने अपनी पेन को, अपनी जो ड्राइंग है आपको उसको सेव कर लिया होगा तो। So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.